students, today we are going to further discuss about our topic replication of DNA. The replication of DNA in the case of eukaryotes is semi-discontinuous, bidirectional and semi-conservative. The first step for the replication was the activation of the deoxyribonucleotides. Once they are activated means monophosphates are converted into triphosphates. These triphosphates will be serving as a source of energy which will be required to build up the hydrogen bonds between the base pairs, right? So that will be activating. After activating, the next step, that was separation of the two DNA strands, or we can say that exposure of DNA strands. DNA strands का exposure मतलब यहाँ पे with the help of the helicase enzyme, the two strands of the DNA are going to be unwinded, and as they get unwinded, what will happen? There will be two template strands, or we can say two parental strands, जिसके complementary नए DNA strands जो है वो form होने वाले हैं. The third step that we have discussed was the use of RNA primer. RNA प्राइमर के बिना जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड ही नहीं कर पाएगा. इसलिए RNA primer is a short stretch of RNA sequence that will be required for the DNA polymerase to further add the nucleotides. The fourth step that we have discussed was about DNA polymerase. हमने बात की थी कि यूकैरियोट्स में तीन तरह के DNA polymerase होते हैं, polymerase 1, 2 and 3. आउट ऑफ विच जो न्यूक्लियोटाइड्स रैपिडली ऐड करता है वो है पॉलीमरेज 3. तो पॉलीमरेज 3 जो है दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल इन एडिंग अप द न्यूक्लियोटाइड्स एंड डेवलपिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स. सो दैट विल बी द रोल ऑफ द एंजाइम. देन नेक्स्ट वाज बेस पेयरिंग. सो वन बाय वन द न्यूक्लियोटाइड्स विल बी एडेड अप. जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे, ट्राइफॉस्फेट्स जो है दे विल बी कन्वर्टेड इनटू मोनोफॉस्फेट, and the one complementary to the parental strand will be placed at the opposite side, and in this way the strand formation will begin. So now we are talking about that how there will be chain formation or the strand formation that is going to occur. So that is our fifth step for DNA replication, and that is known as the chain formation. It is known as the chain formation. Now this chain formation is the process performed by DNA polymerase 3. Okay, the enzyme DNA polymerase 3 in presence of magnesium and ATP adds up the nucleotides and builds phosphodiester bond between adjacent nucleotides. What will be formed? Phosphodiester bond will be formed between the adjacent nucleotides. तो अभी तक हमने क्या देखा था? रेप्लिकेशन फॉर्क, राइट? रेप्लिकेशन फॉर्क में यहाँ पे होता है हेलिकेज एंजाइम जो दोनों स्ट्रैंड्स को क्या कर रहा है? अनवाइंड कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो दो स्ट्रैंड्स थे, राइट, ये दो स्ट्रैंड्स किस डायरेक्शन में थे? तो यहाँ पे हम एक प्राइमर अटैच किया था. प्राइमर की डायरेक्शन थी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइट. यहाँ पे जो हमारा स्ट्रैंड है दैट इज गोइंग टू बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम. ऑपोजिट जो स्ट्रैंड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट. तो एक प्राइमर हमने यहाँ पे प्लेस किया था और दूसरा प्राइमर हमने यहाँ पे प्लेस किया था, दैट वाज 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, अटैचमेंट ऑफ द आरएनए प्राइमर, ठीक है. अब देखिए क्या होने वाला है. जैसे जैसे डीएनए पॉलीमरेज 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा वैसे वैसे एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में क्या डेवलप होने लगेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनने से
अब ये जो चेन है that is going to be elongated, or you can say that nucleotides get polymerized and it will be responsible for formation of a chain which will be complementary to the parental strand. क्यों complementary to the parental strand? क्योंकि अगर यहाँ पे एडेनाइन है तो यहाँ पे थाइमिन आएगा, यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन आएगा, वैसे करते करते वन बाय वन न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ऐड होते जाते हैं। ये ऐड करने का काम किसका है? द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है, वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है, बीच बीच में फॉस्फोडाइस्टर लिंक्स बनाता जाएगा एंड इन दिस वे अ चेन फॉर्मेशन विल बी इनिशिएटेड। चेन फॉर्मेशन जो है वो इनिशिएट हो जाएगी पर डायरेक्शन दोनों तरफ अपोजिट है, क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड्स जो थे, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो था, इट इज हैविंग एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होने की वजह से अगर एक का सिंथेसिस इस डायरेक्शन में हो रहा है तो दूसरा जो स्ट्रैंड है दैट इज हैविंग अ प्राइमर ओवर हियर, राइट। तो अब क्या कंडीशन आती है, वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूं, द टू डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स कैसे हैं? एंटी पैरेलल, क्योंकि ये 3 to 5 है, ये 5 to 3 है, तो दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल हो गए, ठीक है। इसलिए जो दो स्ट्रैंड्स बनेंगे वो भी एक दूसरे से एंटी पैरेलल होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक स्ट्रैंड बन रहा है वैसे ही स्ट्रैंड यहाँ पे भी बनना चाहिए। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है, इट इज एबल टू ऐड द न्यूक्लियोटाइड्स ओनली एट विच एंड 3 प्राइम एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। डीएनए पॉलीमरेज 3 कैन ऐड nucleotides only in 5 prime to 3 prime direction, that is at 3 prime end। क्या कर सकता है वो? न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर सकता है, ठीक है। पॉलीमरेज 3 का काम ही क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना। पर ये न्यूक्लियोटाइड्स कहां पे ऐड करता है? ये सिर्फ और सिर्फ 3 प्राइम एंड पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है ऑन अ 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड, ठीक है। क्योंकि स्ट्रैंड कौन सा है? 5 to 3 स्ट्रैंड होगा, उसमें 3 वाले एंड पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा। तो यहाँ पे 3 वाले एंड पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा तो वन बाय वन वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा। तो हेलिकेज जो है, इट इज ओपनिंग, इट इज अनवाइंडिंग द स्ट्रैंड्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे जैसे हेलिकेज आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डीएनए मतलब रेप्लिकेशन फॉर्क बनता जा रहा है, अनजिप होता जा रहा है डीएनए, राइट। अनजिप मतलब पहले कॉइल्ड है, आगे का डीएनए कॉइल्ड है, पर जैसे जैसे ये हेलिकेज एंजाइम मूव कर रहा है वैसे क्या होता जाएगा? रेप्लिकेशन फॉर्क विल बी मूविंग इन वन डायरेक्शन, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में हेलिकेज एंजाइम अनवाइंड कर रहा है उसी डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जा रहे हैं। तो इसीलिए ये वाले स्ट्रैंड को क्या कहा जाएगा? लीडिंग स्ट्रैंड। व्हाट इट विल बी नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड, ओके। सो न्यूक्लियोटाइड्स आर added up continuously to form the strand which is called the leading strand। तो इस स्ट्रैंड को क्या कहा जाएगा? लीडिंग स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में हेलिकेज अनवाइंड कर रहा है उसी डायरेक्शन में 3 प्राइम एंड में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जा रहे हैं। तो ये स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो है वो बनता जाएगा, ठीक है। अब बात आती है ऑपोजिट स्ट्रैंड की। ऑपोजिट स्ट्रैंड में भी डीएनए पॉलीमरेज किस जगह पे न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है? 3 प्राइम एंड पे। तो 3 प्राइम एंड की डायरेक्शन इस तरफ है, जबकि हेलिकेज जिस डायरेक्शन में फॉर्क बना रहा है वो ये वाला एंड है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्मॉल, ज्यादा ओपन ही नहीं है डीएनए, क्योंकि इतना सा फ्रैगमेंट ओपन है, फिर वापस क्या है? कॉइल आएगा। तो यहाँ पे हेलिकेज के डीएनए ओपन करने की डायरेक्शन और डीएनए पॉलीमरेज के न्यूक्लियोटाइड ऐड करने की डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से हियर देयर विल बी अ डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड दैट विल बी synthesized, right? So
at the other side the strand is known as lagging strand. It will be known as the lagging strand, right? As it is formed in small fragments. As it is formed in small fragments. समझिए, यहाँ पे 3 प्राइम डायरेक्शन में ही न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे और हेलिकेज एंजाइम इस डायरेक्शन में मूव होता जाएगा. जैसे जैसे वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, डीएनए अनकॉइल होता जा रहा है, अनकॉइल होता जा रहा है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स 1 by 1 ऐड हो रहे हैं. पर आप अपोजिट साइड देखिए, अपोजिट जो स्ट्रैंड है वो क्या है, 5 2 3, और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किस डायरेक्शन में होंगे, 3 प्राइम एंड पे. तो यहाँ पे थोड़े न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज को रुक जाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अब आगे का डीएनए कैसा है, कॉइल होने वाला है, इसलिए वो ऐसे मूव नहीं हो सकता. इट ऑल्सो हैज टू मूव इन दिस डायरेक्शन. सो व्हाट इज डीएनए पॉलीमरेज गोइंग टू डू? इट इज गोइंग टू रिटर्न बैक once the helicase moves from here to this direction, right? तो क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज को वापस आना पड़ेगा, फिर वापस न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने पड़ेंगे. सो इन दिस वे यहाँ पे जो स्ट्रैंड बनने वाला है वो स्ट्रैंड कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगा. और इस डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को क्या कहा जाता है, लैगिंग स्ट्रैंड. एंड स्मॉल फ्रैगमेंट्स आर नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स. ये जो छोटे फ्रैगमेंट्स जो बन रहे हैं, छोटे जो स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, उन्हें कहा जाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, जो नियरली 100 to 200 बेस पेयर्स होते हैं यूकैरियोट्स में एंड अबाउट 1000 बेस पेयर्स के होते हैं इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. ठीक है. लास्टली हर एक ओकाजाकी फ्रैगमेंट को एक नया आरएनए प्राइमर चाहिए. तो इस डायरेक्शन में बहुत से आरएनए प्राइमर्स चाहिए होंगे, बिकॉज एवरी टाइम इट हैज टू इनिशिएट द रेप्लिकेशन, राइट. हर एक बार रेप्लिकेशन इनिशिएट करना पड़ता है, इसलिए उतने ज्यादा आरएनए प्राइमर्स विल बी रिक्वायर्ड, राइट. सो ईच फ्रैगमेंट रिक्वायर्स अ न्यू आरएनए प्राइमर. ठीक है. लास्टली एक तरफ का स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड कहलाया जाएगा और एक तरफ का स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाएगा, क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अपोजिट एंटी पैरेलल हैं. इसलिए ये जो कॉम्प्लीमेंट्री जो नए 2 स्ट्रैंड्स बनेंगे वो भी कैसे होंगे, एंटी पैरेलल टू ईच अदर. सो वन विल बी लीडिंग एंड वन विल बी लैगिंग. पर लास्टली क्या करना पड़ेगा, लास्टली इन सारे फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा, राइट. तो इनको ज्वाइन करने के लिए इनको ज्वाइन करना पड़ेगा और जो आरएनए प्राइमर्स हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा. तो रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर एट द एंड ऑफ replication, the RNA primer are removed. RNA primers are removed by DNA polymerase 1. लास्टली आरएनए प्राइमर को यहां से आरएनए प्राइमर को हटाना पड़ेगा और यहाँ पे तो कितने सारे आरएनए प्राइमर्स हैं, सबको हटाना पड़ेगा. तो आरएनए प्राइमर को हटाने का काम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम का रहता है. इट्स फंक्शन इज टू रिमूव द आरएनए primers and all the Okazaki fragments have to be joined, and so the fragments will be joined. Fragments are then joined by which enzyme is responsible? The enzyme is DNA ligase. The enzyme is DNA ligase. Ligase जो enzyme है वो फिर इन सारे fragments को join कर लेता है. ठीक है. तो ये ऐसे करते करते ये रेप्लिकेशन जो है वो कंटिन्यू होगा और इसीलिए इसे क्या कहा गया है, सेमी डिसकंटिन्यूअस. क्योंकि एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस है पर दूसरा स्ट्रैंड कैसा है, डिसकंटिन्यूअस. इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन की फर्स्ट लाइन हमने लिखी थी दैट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी डिसकंटिन्यूअस, सेमी कंजर्वेटिव एंड बाई डायरेक्शनल. ठीक है. क्योंकि ऐसे 2 रेप्लिकेशन फॉर्म होंगे,
they will begin at the origin and they will be ending at the other end, दूसरे end पे खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसलिए बाई डिरेक्शनल. ये एक तरफ का रेप्लिकेशन फॉर्क है, वैसे ही दूसरा रेप्लिकेशन फॉर्क होगा एंड इट इज गोइंग टू कंटिन्यू टिल द होल डीएनए स्ट्रैंड गेट्स रेप्लिकेटेड. लास्टली कभी कभी डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है इट गेट्स मिस्टेकन बिटवीन थाइमिन एंड यूरासिल. तो कई बार क्या करता है पॉलीमरेज 3, इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग थाइमिन ऑपोजिट टू एडेनाइन, वो क्या प्लेस कर देता है, यूरासिल. तो अब ये एरर को रिमूव करके प्रूफ रीड करना, मतलब वापस सही करने का काम भी डीएनए पॉलीमरेज 1 का है. मतलब पॉलीमरेज 3 sometimes gets mistaken and instead of placing thymine over here it places uracil. This error is being removed and it is being replaced by the proper nitrogen base by the enzyme DNA polymerase 1. रेप्लिकेशन का लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है प्रूफ रीडिंग. प्रूफ रीडिंग मतलब क्या डीएनए रेप्लिकेशन ठीक से हुआ है या नहीं, और प्रूफ रीडिंग का काम किसका है, डीएनए पॉलीमरेज 1, which will be checking any error that has been made by DNA polymerase 3 while performing the process of replication. इसलिए polymerase 1 को क्या और कहा जाता है, मतलब प्रूफ रीडिंग एंजाइम भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर बेस को वहां पे प्लेस करता है. So that was the whole process of DNA replication. I insist you that you may watch certain animated videos of the replication in order to understand the topic of leading and lagging strand very properly. Okay. So that was the topic of replication. In the next class, we will begin with the other topic.